The two plates of a parallel plate capacitor are 4 mm apart. The two plates of the parallel plate capacitor. So these are the two plates of the parallel plate capacitor. इन दोनों के बीच की दूरी दे रखा है मेरे पास 4 mm अपार्ट। स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसके अंदर एक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया अभी, के की वैल्यू कितनी है 3 एंड द थिकनेस इज गिवन फॉर मी, इसका थिकनेस दे रखा है मेरे पास t is equals to 3 mm is introduced between the plates so as to adjust that the capacitance of the capacitor becomes 2 by 3rd, sorry, C dash will become for me 2 by 3rd times of your original capacitance. Before inserting the capacitance, it is epsilon naught into your A by D. After inserting, it is becoming 2 by 3 times of this one. And this C dash will be equal to how much beta? Epsilon naught into your A divided by, this one is your D minus of your T plus of your T by your K is equals to 2 by 3 times of your epsilon naught into your A divided by your D. Okay, this epsilon naught will get cancelled right now here. So this is 1 right now, 1 by D minus of your T plus of your T by your K is equals to 2 by your 3 into D value is how much for me? 4. Okay, so answer is in mm only, so I'm not changing anything right now there. So I'll keep that one as it is right now there. So this one is a 2 1s are, this one is 2 2s are, 3 2s are 6. That means here D minus of your T, that means this is new distance beta D dash. So thickness is given how much for me beta? 3 mm plus this one is the 3 by your dielectric constant is also 3. 3 2s are 6. This one will get cancelled. So D dash minus of your 3 plus 1 is equals to 6. Okay now, so how much I'll be getting beta? So D dash will be equal to your 6. This one is minus plus of your 4. So this will become beta 3 plus 1. क्या बोले? 6 is equals to D dash 3 plus of your 1. बराबर ये लिखा ना? सिक्स प्लस 2 आता ना सर? हाँ 6 plus 2 आता, सॉरी वही देख रहा हूँ। -3 plus 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना? So this will become for me your plus 2. यानी कितना हो जाएगा? 8 mm. क्लियर है? So 8 mm must be the answer. ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 8. If in a capacitor of capacitance of 20 microfarad, the distance between the plates is 2 mm. If a dielectric slab of width 1 mm and dielectric constant 2 is inserted between the plates, the new capacitance is, I hope everyone can do this one better. Same condition, C is equals to epsilon naught into your A by D, and the C dash will be equal to your epsilon naught into your A divided by your D minus of your T plus of your T by your K. इन दोनों का रेशियो कर लो, that will get the answer for that one. कर लोगे ना? Direct question है. Question number 9. The capacitance of an air-filled parallel plate capacitor is 10 microfarad. The separation between the plates is doubled and the space between the plates is filled with wax, giving the capacitance new value as 40 into 10 to the power of minus 2 farad. The dielectric constant of the wax will be equal to how much? So when it is in air, C is equals to epsilon naught into A divided by D. So the value of this C is given how much for me beta? 10 microfarad. That is 10 into 10 to the power of minus 6 farad. Okay, the separation between the plates is being filled with your dielectric, filled with a plate is filled with a wax with the capacitance becoming for me how much? 40. And C dash will be equal to your right now. This is insert with your dielectric, so it is K into your epsilon naught into your A divided by, such that what is happening? The plates, the separation between the plates is double. That means this is 2D. The new capacitance is becoming for me 40 into 10 to the power of minus 12 farad. Okay now, so therefore I can write here C dash will be equal to epsilon naught into your A by D can be written as this value beta. So it is your K by your 2 into your, that is 10 into 10 to the power of minus 6. C dash value is how much for me? 40. What is asking? The dielectric constant only na? So 40 into 10 to the power of minus 12, that is equals to K by 2 into 10 into 10 to the power of minus 6. So this one and this one will be get cancelled. So 4 into 2, that will become for me how much for me? 8. So this will be equal to your 8. This one will be equal to your 8, and this will become how much for me beta? Into 10 to the power of minus 12. ये इधर आ जाएगा 10 to the power of minus 6, that is equals to K. ये ऊपर चले जाएगा तो 10 to the power of minus 6 हो जाएगा. So K value will be equal to your 8 into 10 to the power of minus 6. Clear है? So the dielectric constant will be 8 into 10 to the power of minus 6. So 8 value आ जाएगी.
क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो Yes, sir. 10th one देख लो बेटा. The capacitance of a parallel plate capacitor is 12 microfarad. If the distance between the plate and the area is half, the new capacitance will be equal to how much? I hope you can do this question directly. आप लोग कर लोगे ना? कर लोगे ना? डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, isn't it? C is equals to how much for me? Epsilon naught into A divided by D. A dash कितना हो गया मेरे पास? A by 2 और D dash is becoming how much for me? D. That is C dash will be equal to epsilon naught into A dash will become for me A by 2 into your epsilon naught D will become how much for me? D dash. That is nothing but of your 2D. यानी epsilon naught into A can be taken as of your C by your 4. यानी C dash will be equal to C. C की वैल्यू कितना दे रखा है? 12 by your 4. That means this will become for me 3 microfarad. D will be the answer. Clear? So question number 11. A capacitor of capacitance 50 microcoulomb. When the gap between the plates is filled with the wool, 120 microcoulomb charge flow through the battery. The dielectric constant of the glass wool will be equal to how much? You know that when dielectric is inserted, charge will become for me K times of your Q. So dielectric push right, so this will become for me Q dash divided by your Q. This one is how much for me beta? A capacitor has a charge of 50 microcoulomb and the gap between the plates is filled with a wool of 120 microcoulomb. 120 microcoulomb हो गया तो क्या हो जाएगा बताओ, कोई बता सकता है? Q dash will be equal to how much for me? 120 plus 50 है कि नहीं? Initial charge will be equal to 50, तो ये हो जाएगा 150 plus of your 150 60 70, ये हो गया 170 divided by 50, तो ये हो गया तो कितना आ रहा है देखो? 5 1 3.4 ठीक है. कूलम सेकंड में डबल हो रहा है बेटा, चार्ज इंक्रीज हो रहा है बिकॉज इनिशियली 50 है, उसके बाद 120 माइक्रोकूलम वूल आपने उसमें भरा तो टोटल चार्ज बन जाएगा 120 प्लस 50 दैट इज 170. ठीक है चलो. द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज First option. फर्स्ट ऑप्शन 1/2 epsilon naught into your E square. Very good. Next one. In the network shown, the ratio 2C capacitor to the 4C capacitor will be equal to how much? The ratio of your 2C divided by your 4C. Okay, यहाँ पर 3C दिया हुआ है, 3 दिया रखा है, and they are given me a battery. इसका potential दे रखा है, मान के चलो some V, मुझे कुछ नहीं दिया हुआ है. So क्या करेंगे बेटा? पहले we'll try to calculate the charge on this one. तो इंडिविजुअली चार्जेस क्या हो जाएंगे इस पे देखो बेसिकली, तो इस पे हो जाएगा चार्ज यहाँ पर Q1, इस पे हो जाएगा मान के चलो Q2 और इस पे हो जाएगा Q3 और इस पे हो जाएगा Q4. This is negative, तो इसको कनेक्ट किया हुआ है right now for one plate and this one is connected to another plate. So this one is negative plate and this one is nothing but positive plate. This one is again negative, this one is of your positive. This one is negative, this one is positive. So this one will be negative and this will be your positive. ऐसे भी आ सकता है, वैसा कुछ भी नहीं. ठीक है. चलो रेशियो ऑफ योर Q2 by Q4 पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा बेटा बता जल्दी से. आया किसी को? Third option आया था. थर्ड ऑप्शन आया. कैसा? सी इफेक्टिव कितना बन रहा है बताओ पहले. 3C 2C and C will be which combination beta? Series combination, isn't it? So series combination मतलब क्या हो जाएगा? 1 by C effective is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. One by C effective is equals to 1 by your 3C plus 1 by your 2C plus 1 by your C. यानी C effective कितना आया इसमें से? कैल्शियम बताओ जल्दी से कितना आ रहा? 1 by 3 plus 1 by 2C plus 1 by C कितना आ रहा? कितना है बेटा? 6 by 11. कितना? 6 by 6 by 11. 6 by 11. 6 by 11 पक्का? Yes, sir. 6 by 11 C होता है ना? C effective 1 by C effective है कि C effective है वो? C effective. C effective. Then there is 6C by 11 और ये 4C से पैरेलल हो जाएगा. So C effective dash will be equal to your
6C/11 प्लस ऑफ योर 4C, तो ये कितना आ रहा है देखो, कितना आ रहा, 4.5. 4.5 रेशियो में आ रहा, सर अपन को C1 by C2 का रेशियो लेना ना। 1/11 प्लस 4/1 ना, 50/11 सर, कितना 50/11. 50/11 पक्का, इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटा, ये पूरा पैरेलल जी सर। कॉम्बिनेशन में इस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल सब जगह डिफरेंट होगा, यहाँ पर V1 होगा, यहाँ पर V2 होगा, यहाँ पर V3 होगा, तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहाँ पर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, तो सभी में चार्ज सेम रहेगा, सो इट इज Q1 V1 विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, इसके ऊपर चार्ज हो गया Q डिवाइडेड बाय C, ठीक है ना, नेक्स्ट वन के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, सभी पे चार्ज सेम रहेगा, कितना आएगा चार्ज, कोई बता सकता है क्या, मैं फाइनली ले रहा हूँ उसको, दिस इज Q, इसका कैपेसिटी बन जाएगा 2C प्लस ऑफ योर Q, दिस इज योर 3C, सो इट इज योर Q/C, अगर मैं कॉमन ले लूँ, सो इट इज Q/C कॉमन ले लो, सो इट इज 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, तो कितना आ रहा है देखो पोटेंशियल, सो ये हो गया C, ये हो गया V, सो C इंटू V इज इक्वल्स टू Q इंटू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 कितना आ रहा, 1 प्लस 1/2 इज 3/2, 3/2 प्लस 1/3 कितना आ रहा, कितना आ रहा है, 3/2 प्लस 1/3, क्या हुआ, 11/6 सर. 11/6, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, Q इज इक्वल्स टू योर 6CV डिवाइडेड बाय 11, होता है ना, ये पूरा चार्ज किस पे रहेगा बेटा, इस पे रहेगा Q3 Q2 और Q1 पे, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहेगा, ठीक है ना, तो रेशियो पूछ रहा है उसके ऊपर, isn't it? So Q4 पे चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, देखो ये कितना चार्ज हो जाएगा, Q2C के ऊपर चार्ज मैं मान के चल रहा हूँ, मान के चलो, ये मान के चलो Q2, सब जगह Q1 Q2 Q3 विल बी सेम, अब Q4 पे कितना हो जाएगा, कितना कोई बता सकता है, Q4 विल बी इक्वल टू योर, इसका कैपेसिटी कितना है 4C इंटू पोटेंशियल विल बी इक्वल टू V, सो दिस विल बी योर 4, तो पूछा क्या रेशियो, Q2 by your Q4, दिस इज 6CV डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय 4CV, तो कितना आ रहा बेटा, ये CV चले गया, सो दिस इज 6/11 इंटू योर 4, कितना आ रहा, 2 3s 2 2s, तो कितना आया 3/22, 3/22 है क्या कहीं पर, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है, ये देखो बेटा Q3 में सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो Q1 विल बी इक्वल टू योर Q2 विल बी इक्वल टू Q3, वो मैंने निकाला, कितना आया चार्ज हम लोग को, पोटेंशियल विल बी इक्वल टू V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, सो इट इज Q/C Q/2C Q/3C, तो इसमें से मुझे आ गया चार्ज Q2 की वैल्यू आ गई 6CV/11, उसके बाद Q4 इज इक्वल टू कैपेसिटेंस फोर्स B और उसका पोटेंशियल पैरेलल में इनटू V, तो उसका रेशियो ले लो, आंसर आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है, इज दैट क्लियर, Yes, sir. 14th one. A fully charged capacitor has a capacitance C. It is then discharged through a small coil of resistance wire embedded in a thermally insulated block of a specific heat S and mass M. If the temperature of the block is raised by delta T, the potential difference V across the capacitance will be equal to how much? Energy is stored in the capacitor का formula कितना है बेटा, half into C into V square. Can I write this energy in terms of your specific heat beta? This U will be equal to your Q. That is equals to your MS into your delta T. So therefore I can equate both of them. MS into your delta T will be equal to your half into C into your V square. तो अपने को चाहिए क्या, तो पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, so it is 2MS into delta T divided by C will be equal to your V square.
क्लियर है ना? सो पोटेंशियल कितना बन जाएगा, V इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर 2m इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई योर C। ठीक है ना? Yes. कुछ ऑप्शन मैच D. 2ms डेल्टा t 2ms डेल्टा t डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पर स्पेसिफिक C आना। ऐसे दे रखा है, S दे रखा है और कैपेसिटेंस C दे रखा है, तो S क्यों आ जाएगी, C आना चाहिए ना। Yes. So D must be the answer. 2ms delta t divided by your C. Clear है? चलो 15th वन तो किया होगा आप लोग ने। Square plate of side A is filled with the dielectric constants K1, K2 and K3. So K1, K2 मतलब इसको आप ऐसा ड्रॉ करके देख लो, आप लोग को आसान हो जाएगा। तो ये हो गया इस तरह से, ये हो गया इस तरह से। एक प्लेट ऐसा है जिसकी डिस्टेंस है मेरे पास d/2 और एक प्लेट ऐसा है, बेसिकली ये हो गया K1 और ये हो गया K2 और ये हो गया और एक K3। K1 and K2 are one above the other, तो कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, पैरेलल, isn't it? And that will be in series with your K3। क्लियर है? इसको मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, देखो इसको मैंने दे दिया कैपेसिटी C1, इसको C2 और इसको C3। C1 C2 विल बी इन विच कॉम्बिनेशन बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो C1 और C2 दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे एंड दिस विल बी इन सीरीज विद द इफेक्टिव। क्लियर है? ऐसा ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा C3। दिस इज इफेक्टिव बिटवीन योर A एंड B। क्लियर है? सो C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, अब मैं कैलकुलेशन आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। सो C1 इज इक्वल्स टू योर K1 इंटू योर एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया कितना हो जाएगा, कोई बताएगा? व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ईच प्लेट, स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए। सो एक स्क्वायर का ये है, तो एरिया कितना बन जाएगा बेटा, ए स्क्वायर बनेगा, है कि नहीं? इज इट क्लियर? तो इसमें एरिया भी हाफ हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू डिस्टेंस विल बिकम फॉर योर d बाय योर 2। तो ये 2 और ये 2 चले गया, तो ये बन गया मेरे पास K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय d, क्योंकि साइड दे रखा है प्रॉब्लम में, एरिया होना चाहिए लेंथ इंटू ब्रेथ। उसी तरह से C2 विल आल्सो बी इक्वल टू C1, सो दैट विल बी इक्वल टू योर K2 इंटू योर एप्सिलॉन नॉट इंटू योर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर d। और C3 कितना बन जाएगा बेटा, C3 इज इक्वल्स टू योर K3 इंटू एप्सिलॉन नॉट, उसका एरिया कितना हो जाएगा बेटा, एरिया विल बी रिमेनिंग फॉर मी द सेम एंड डिस्टेंस विल बी कमिंग फॉर मी d/2, यानी ये हो जाएगा 2। क्लियर है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. तो C effective कितना बन जाएगा, 1 by C effective will be equal to your, so this will become how much for me beta, C1 and C2 are in what combination, parallel combination। C1 plus C2 are in parallel combination, यानी वो बन जाएगा मेरे को C1 plus C2, so this is 1 by C1 plus C2 plus 1 by your C3। ठीक है ना? अब इसको वैल्यूज डाल के आप सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, आई एम लीविंग दैट कैलकुलेशन फॉर यू। 16th वन, ओके, इनफाइनाइट सीरीज का है। इनफाइनाइट का मैंने आप लोग को एक मेथड बताया था। इनफाइनाइट में जो भी रिपीटिंग हो रहा है उसको आप निकाल दो, जो फर्स्ट सर्किट है उसको एज इट इज रखो, और जो भी निकालने के वक्त जो भी इसको नाम दे रहे हो ना, दो इफेक्टिव भी हम लोग को वही नाम लेना पड़ेगा। क्लियर है? सो एक कैपेसिटेंस कुछ भी नहीं दिया ना, एवरीवेयर इट इज राइट नाउ फॉर मी हाउ मच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, एवरीवेयर आई एम टेकिंग इट एज सी बेटा, इट इज गोइंग अप टू इंफिनिटी। तो ये सी ले लिया, एसी 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 और एसी। ये रिपीटिंग है, तो रिपीटिंग वालों को पूरों को मैंने निकाल रहा हूँ, तो इसको मैंने पूरा निकाल दिया और इसको मैंने नाम दे दिया एक्स। ठीक है, चलो 16th वन ऐसा कुछ लिख रहा हूँ। देखो, तो यहाँ पर एक कैपेसिटर हो गया, और यहाँ पर एक कैपेसिटर ऐसा हो गया, और यहाँ पर एक कैपेसिटर इस तरह से, सब ये सी है, ये सी है, और इसका एक टर्मिनल यहाँ पर है पॉजिटिव नेगेटिव। मैंने पूरा निकाला, तो उसको एक मैंने कैपेसिटर दे दिया, उसका नाम मान के चलो मैंने एक्स दे दिया, और इसका कैपेसिटी सी। दिस टू आर इन विच कॉम्बिनेशन बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये बनेगा ऐसा कुछ, ये हो गया एक पैरेलल, तो उसके साथ यहाँ पर एक बन गया, और उसके साथ यहाँ पर एक पैरेलल बन गया। सो दिस इज योर टर्मिनल्स, दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। ये सी है, ये सी है, और ये कितना बन जाएगा बेटा, सी इंटू योर एक्स डिवाइडेड बाई सी प्लस ऑफ योर एक्स। So C effective between the terminals A and B. So everything will be in which combination beta, series combination. So series combination मतलब कितना हो जाएगा बेटा, कोई बता सकता है? Everything is in series combination. So 1 by C effective will be equal to your 1 by your C plus C is nothing but 2C. 1 by C plus 1 by C.
3C. ओके सॉरी, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/c प्लस योर c इंटू योर x डिवाइडेड बाई c प्लस ऑफ योर x प्लस 1/c। 1/c प्लस 1/c कितना बन जाएगा? ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में बेटा? क्यों बेटा भाई? ठीक है, बराबर लिखा है? बराबर है ना बेटा? Yes, sir. c इंटू एक्स 1/c प्लस 1/c कितना हो जाएगा? c/2 2/c sir. 2/c हो जाएगा c इंटू योर x बाई c प्लस x, यानी इसको भी 1/x ले लेते हैं। ये हो जाएगा 2/c प्लस ये हो जाएगा c इंटू योर x डिवाइडेड बाई c प्लस ऑफ योर x। क्लियर है? तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा? सो x की वैल्यू बन जाएगी, ये कितना हो गया मेरे पास 2/c। सो x विल बी इक्वल टू योर, so this one will become for me your 2/c into your c into your x divided by c plus x divided by 2/c plus of your c into your x divided by c plus x। ठीक है ना? ये पूरा इधर चले जाएगा, दिस इज 2/c, कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जा रहा है। 2/c प्लस ऑफ योर c into x plus c plus x into your x, that will be equal to your 2/c plus of your c into your x divided by c plus x। So we'll get some quadratic equation, उसको सिंप्लीफाई कर लो, that will give me the value of your x बेटा। मेथड इतना ही है, ओनली थिंग इज जो भी इन्फिनिट निकालोगे ना, जो भी उसका नाम दोगे, द सेम थिंग शुड आल्सो बी फॉर योर इफेक्टिव, दैट विल गिव मी द आंसर फॉर दैट। ठीक है, चलो एक बार ट्राई कर लो, नहीं हुआ तो इसका एक वीडियो सोल्यूशन है मेरे पास ऑलरेडी, वो मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ बेटा। 17th वन देखो, इन द सर्क्यूट शोन द चार्ज ऑन 1 माइक्रोफैरेड टू 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स रिस्पेक्टिवली आर हाउ मच? तो बता सकता है क्या? पोटेंशियल दे रखा है मेरे पास 9 वोल्ट। ओके, आर इफेक्टिव कितना है बता? वन माइक्रोफैरेड एंड 3 माइक्रोफैरेड पे हम लोग को चार्ज चाहिए, यानी चार्ज होना मतलब C is equals to Q by V, Q is equals to C into V, that means I need to know the potential first। ठीक है, चलो पहले करंट निकालो बेटा पूरा, I is equals to, पहले करंट निकालो, I is equals to V by R effective। पोटेंशियल कितना दे रखा है 9, R effective कितना आ रहा कोई बता सकता है क्या? R effective कितना आ रहा? Can anyone tell me what is an R effective? नहीं है, सिंपल है बेटा, ये बैटरी से करंट निकल रहा है अपने पास I यहाँ पर आ रहा है एंड इट इज गेटिंग डिवाइडेड हियर, इसमें एक करंट जाएगा, इसमें करंट, तो डिवीजन हो गया, तो ये करंट इसमें ऐसे ही जाएगा, ये करंट फिर ऐसे ही जाएगा, यानी 3 + 6 इज इन विच कॉम्बिनेशन बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन, तो कितना हुआ 9, 2 + 7 9, बोथ ऑफ देम आर इन विच कॉम्बिनेशन? पैरेलल, पैरेलल, तो कितना हुआ 4.5 4.5, 9 into 9 divided by 9 plus 9, हाँ तो 4.5, हाँ, तो करंट कितना आ रहा पूरा? टू एम्पियर्स, कितना? 2 एम्पियर्स। 2 एम्पियर कैसा आएगा बेटा? देखो यहाँ पर जब हम लोग करंट ले रहे हैं, बेसिकली ध्यान से देखो जरा, बी लिटिल बिट केयरफुल, दिस करंट जैसे यहाँ पर आएगा इट विल गेट डिवाइड यहाँ पर,
तो यहाँ पर डिवाइड होने के कैपेसिटर्स में से नहीं जाएगा और ये कैपेसिटर्स में नहीं जाएगा। सो करंट जो है ना डायरेक्टली शॉर्टेस्ट पाथ ले लेगा, तो यहाँ पर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन कैपेसिटर्स रहने की वजह से ये इसमें कंप्लीट फॉर्म नहीं होगा। तो करंट क्या जाएगा, इसमें से सीधा होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, फिर वापस आ जाएगा इस तरह से। इसकी जर्नी ऐसी हो जाएगी। सो I is equals to V by R effective 7 plus 2 7 8 9, तो ये भी 9 हो जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर। So total current will be equal to your 1 ampere, यानी total circuit में 1 ampere, ये तो नीचे भी जाओ या ऊपर भी जाओ। So total current will be in the circuit is equal to how much for me बेटा 1 ampere। अगर ऊपर के बारे में भी ले रहा हूँ तो वो इसमें भी करंट कितना हो जाएगा 1 ampere। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस योर 1 माइक्रोफैराड कितना आ जाएगा बेटा, इसके पास पोटेंशियल कितना आ जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल कितना आ रहा था, V is equals to I into R। I की वैल्यू 1 है, दिस वन इज 3, यानी ये हो गया 3 वोल्ट, यानी इसके पास पोटेंशियल हो जाएगा 3 वोल्ट और इसके पास पोटेंशियल हो जाएगा कितना बेटा, इसमें करंट कितना जा रहा है 3 माइक्रोफैराड। कितना है बेटा, इसमें पोटेंशियल यहाँ पर कितना हो जाएगा, V is equal to I into R, यानी 1 into 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 वोल्ट। तो चार्ज ऑन Q1 कितना हो जाएगा, एक निकाल के देखता हूँ मैं, बेसिकली 17 यहाँ पर लिख रहा हूँ देखो। सो चार्ज ऑन 1 माइक्रोफैराड, चार्ज ऑन 1 माइक्रोफैराड into Q1 is equals to your C1 into your V1। C1 is 1 और हो गया 3, यानी दिस विल बी इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम्स। तो फर्स्ट वन में 3 माइक्रोकूलम्स में, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, यानी फर्स्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन चले जाएगा। देन उसके बाद Q2 इज इक्वल्स टू 3 माइक्रोफैराड, उसके बाद पोटेंशियल कितना है 7, सो इट इज 7 into 3, है ना, दैट विल बी इक्वल टू 21 माइक्रोकूलम्स। तो यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 3 माइक्रोकूलम्स एंड 21, क्योंकि करंट इस पे जाएगा, इसका पैरेलल पोटेंशियल हो जाएगा बेटा, और इसका रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। सो इसके पास पोटेंशियल कितना है मेरे पास 7 वोल्ट, isn't it? 3 माइक्रोफैराड यहाँ पर ले लो और यहाँ पर ले लो, अगर यहाँ पर ले रहे हो तो 6 आ जाएगा बेटा। सो 6 into 6, वो ऑप्शन नहीं है तो हम लोग यहाँ का नीचे वाला ऑप्शन ले रहा हूँ। सो दैट विल बी इक्वल टू 21 माइक्रोफैराड। आप ऊपर वाला नीचे वाला दो भी लेके कर सकते हो बेटा, जो भी ऑप्शन में आ रहा है उसके हिसाब से लिख लो। ऊपर वाले को उसमें ले रहा हूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल यहाँ पर होगा 6 वोल्ट, तो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा 3 into 6 16, तो वो नहीं है यहाँ पर ऑप्शन मेरे पास, इसीलिए मैं नीचे वाले पे दिया हुआ, क्योंकि यहाँ पर 3 माइक्रोफैराड पे भी 7 ohms is in parallel। So whatever is the potential across your 7 ohms, the same potential will be across your 3 microfarad। So that is the reason I have taken that one। So 7 into 3 21। So fourth option will be the answer। ठीक है, is it clear? Yes sir। 18th वन ये बैटरी होना चाहिए बेटा, शायद ये बैटरी होना चाहिए, 1 पॉजिटिव टर्मिनल एंड 1 नेगेटिव टर्मिनल। ओके, फाइंड द पोटेंशियल एट योर वो। ओके, फाइंड द पोटेंशियल एट योर वो, हम लोग के पास एक डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला याद है आप लोगों को, टेकिंग द पोटेंशियल V एट वो नॉट विल बी इक्वल टू, सो टोटल कैपेसिटेंस इसका मान के चलो C1, सो इट इज C1 इनटू टोटल पोटेंशियल V डिवाइडेड बाय C1 प्लस ऑफ योर C2। ओके, सो C1 की वैल्यू कितनी है 12, टोटल पोटेंशियल कितना है 24 डिवाइडेड बाय ये कितना है बेटा, C1 कितना है 12 प्लस ऑफ योर 6, 12 plus 6, so that will be 18। तो 12 into 24 divided by your 18 कितना आ रहा है देखो बेटा,
12 into 24 divided by your 18. See how much I'm getting? 16, sir. 16. So 16 volt will be the answer. Direct formula बेटा, क्योंकि एक एक इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के लिए पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला यूज कर रहा हूं यहाँ पर. सो पोटेंशियल अक्रॉस दिस वन विल बी इक्वल टू योर C1 इनटू टोटल पोटेंशियल. अगर यहाँ पर भी पोटेंशियल पूछता तो यहाँ पर क्या लिखते आप लोग? C2 इनटू V डिवाइडेड बाय C1 प्लस ऑफ योर C2 पार्टिकुलेशन. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन. फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D. ये भी वही कॉन्सेप्ट का रिलेशन है. B एंड D के पास अगर पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल अक्रॉस योर B एंड D विल बी इक्वल टू योर कैपेसिटेंस, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू योर C1 इनटू योर टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय योर C1 प्लस ऑफ योर C2. C1 कितना है मेरे पास बेटा, यहाँ पर देखो. So whatever the capacitance you are getting right now, potential difference across your BD will be equal to the potential across this one. यहाँ पर जितना potential होगा यहाँ पर भी उतना ही potential होना, क्योंकि both of them are in the parallel combination. तो ये मैं C1 लेके चल रहा हूँ. So C1 will be equal to 10 into V0 will be equal to 15 divided by your, this one will become for me your 10 plus of your this 2 will be equal to how much बेटा, parallel combination में आ जाएगा ना. So this will be equal to 5 plus 5, that will be equal to 10. तो ये बन जाएगा मेरे पास 10 into 15 divided by 20. तो कितना आ रहा है देखो, 7.5 होता है ना. 0 0 चलेगा, 15 by 2 7.5. देखो बेटा, ये दो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेंगे तो इफेक्टिव हो गया 10, isn't it? तो whatever the potential we are getting here, the same potential will be across your 5. तो ये C1 होगा तो ये वैल्यू C2 हो जाएगी. तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया सीधे से. 28th one देखो. All the capacitors have the equal capacitance C. The capacitance across your A and B will be equal to how much? चलो ये आया किसी को, ये में से करंट जाएगा यहाँ पर जंक्शन के पास आने के साथ ही डिवाइड हो गया यहाँ पर, इस तरह से इस तरह से इस तरह से. So everything is given. Say for example मान के चलो C3 जो कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे. So this one will be equal to 1. This is one more capacitance and this one is one more capacitance. And उसके साथ और एक जो हो जाएगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगा. क्लियर है? तो एक टर्मिनल हो गया ये, सॉरी ये टर्मिनल हो गया ये, और ये टर्मिनल हो जाएगा B, C, C, C. So all of them are parallel. So this will become for me how much बेटा? पैरेलल में कितना आ जाएगा? 3C. ये हो गया कैपेसिटर और ये हो गया कैपेसिटेंस C. So this is your B and this is your A. This one is how much for me your C. So A and B are in parallel combination. So effectives across your A and B will be equal to your 3C into C divided by your 3C plus of your C. So it is 3C square divided by 4C. AC or square चले गया. So it is 3C divided by 4. So first option will be the answer. 21. A capacitor of 10 microfarad capacitor charged to a 50 volt is joined to another uncharged 50 microfarad capacitor. The loss in energy will be equal to how much? इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है हम लोग के पास. लॉस का मैंने फॉर्मूला लिखा था, क्या था बताओ जल्दी से. डेल्टा U is equals to your half into your C1 into C2 divided by C1 plus C2 into V1 minus of V2 into whole square. If nothing is being told, so we'll be taking it as negative beta. Okay. तो इसका आप फॉर्मूलास डाल दो बेसिकली. सो दिस इज योर हाफ इनटू C1 वैल्यू कितना दे रखा है 10, C2 वैल्यू कितना दे रखा है बेटा 50 डिवाइडेड बाय 10 प्लस ऑफ योर 50 इनटू कॉमन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू योर 50 माइनस ऑफ योर 0 होल स्क्वायर. होता हूं देखो यहाँ पर ठीक है. सो कैन यू डू इट राइट नाउ बेटा? इसको कर लो आप लोग, जो भी आंसर आ जाएगा दैट विल गिव मी द आंसर फॉर दैट. ठीक है. Oh, maximum potential okay 22 will do later. 23 2015 में पूछा देखो बेटा. A parallel plate air capacitor has a capacitance C. Distance of the separation between the plate is D and potential difference is V has been applied between the plate. The force of attraction between the plates of the parallel plate in the air will be equal to how much? फोर्स का फॉर्मूला बताओ जल्दी से बेटा, किसी को याद है? Q square by 2A epsilon naught. Square by 2A into your epsilon naught. So Q की वैल्यू क्या होती है? C into V. And C is equals to how much for me बेटा? epsilon naught into A divided by D. तो F की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास कितना बेटा, कोई बता सकता है? Q is equals to C square into V square divided by 2. A into epsilon naught will be equal to C into D. C square will be gets cancelled. So this will become C into V square divided by 2 into your D. So C into V square divided by 2 into D. Third option will be the answer.
क्वेश्चन नंबर 24 भी भयानक क्वेश्चन है। ऐसे वाला क्वेश्चन करा तो डायरेक्टली छोड़ के आना ही बेटर है बेसिकली, वरना बहुत ज्यादा अच्छा आपकी प्रिपरेशन हुई तो ही कर सकते हो, वरना इट इज हाईली नॉट पॉसिबल टू डू फॉर द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग द फिजिक्स इन द लास्ट 1 or 2 months. Capacitor of 2 microfarad is being charged as shown in the diagram. The switch is being turned to the position of your रहने भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। Find the K equivalent, ये तो आप लोग कर सकते हो बेसिकली। K1, K2, K3 will be parallel and that will be in series with your K4. वो कर लो आप लोग, सीधा सीधा है। Then 26. The electrostatic force between the metal plates of an isolated parallel plate capacitor C having a charge Q and area will be equal to how much? आया किसी को आंसर ये? फोर्स का फॉर्मूला अभी लिखे हम लोग ने। व्हाट इज द फोर्स फॉर्मूला? F is equals to your Q square by 2A into your epsilon naught. The electrostatic force between the metal plate of an isolated parallel plate capacitor C having a charge Q and area is proportional to the square root of the distance. Distance पे तो डिपेंड ही नहीं होगा। Linearly proportional to the distance between the plates? No. Independent of the distance between the plates? Inversely proportional. It is independent of the distance. So 26 के लिए C होना चाहिए आंसर अपने। ठीक है। 27. A parallel plate capacitor of capacitance of your 20 microfarad is being charged by a voltage source whose potential is charging at the rate of 3 volt per second. The conduction current through the connecting wires and the displacement current through the plate of the capacitor would be equal to your how much? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आता है बेटा, ये बाद में करते हैं, इसको छोड़ दो बेसिकली। 28. A capacitor is charged by a battery. The battery is removed and another identical uncharged capacitor is connected in parallel. Electrostatic energy of the system is, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है बेटा, ऐसे वाले क्वेश्चंस कंपलसरी करना, वरना इट विल बी अ डिफिकल्ट। 28 में क्या बोला देखो, कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय ए बैटरी। 28 में यहाँ पर कहीं लिख रहा हूँ, ये हो गया कैपेसिटर एंड इट इज चार्ज्ड बाय ए बैटरी लाइक दिस। The battery is done removed, ये बैटरी अभी रिमूव किया। Another identical uncharged capacitor is connected in parallel. Second one में हम लोग को एक another identical uncharged capacitor connected, ये C1 है, ये C1 है, uncharged को हम लोग C ले रहे हैं बेटा। तो connected in parallel, the electrostatic energy of the system क्या हो जाएगा? See, when you are connecting with your battery, the charge will be equal to C into V. When capacitors are connected in parallel beta, common potential will be equal to Q1 plus Q2 divided by your C1 plus of your C2. इसको मैं मान के चलता हूँ C2. Okay, when they are connected in the parallel, तो Q1 and Q2 will be same ना बेटा, तो चार्ज हो जाएगा कितना बताओ जल्दी से। So in parallel combination there is no division of a charge, यहाँ पर एक ही चार्ज घूम रहा है, so this will be equal to your total charge I am taking it as of your Q1 plus Q2, C1 plus C2 that will be equal to your 2C. Clear है? Is that clear? तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बेटा? हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ इंटू सी। पोटेंशियल कितना बन जाएगा बेटा? क्यू बाई सी इज नथिंग बट वी, दिस विल बिकम फॉर मी वी बाई 2 होल स्क्वायर, इजंट इट? तो ये हो जाएगा एक प्लेट के लिए, और एक प्लेट के लिए भी उतना ही होगा ना बेटा, दो प्लेट से। तो दिस इज योर हाफ इंटू सी इंटू योर वी बाई 2 होल स्क्वायर। तो ये बना कितना बेटा? वी स्क्वायर इंटू सी डिवाइडेड बाई 4। दिस इज योर फाइनल। तो पूछ रहा क्या है यहाँ पर? लॉस। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय हाउ मच फैक्टर इज टेलिंग, दैट मींस यू फाइनल माइनस ऑफ यू इनिशियल। सो यू फाइनल माइनस ऑफ योर यू इनिशियल कितना आ जाएगा तो बताएगा? c इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस ऑफ c इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 1/4 माइनस 1/2 कितना आ रहा? कितना है बेटा? CV स्क्वायर कॉमन 1/4 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा? CV स्क्वायर बाई 2, यानी इट विल डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ योर 2। क्लियर है? चलो 29. A capacitor of 4 microfarad capacitor is connected as shown in the circuit. The internal resistance of the battery is 0.5 ohm. The amount of charge on the capacitor will be equal to how much? Capacitor is connected with your resistor. Okay, RC circuit का combination है बेटा। तो इसमें करंट कैसे निकालोगे? I is equals to V by capital R plus small r. Internal resistance भी दे रखा है। So potential कितना दे रखा है प्रॉब्लम में? 2.5 divided by resistance is given for me how much बेटा? 102. This is in the बैटरी अगर नीचे ला लूं तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा? 0.5। तो ये दोनों पैरेलल में बन जाएंगे। दिस विल बिकम फॉर मी 100 into 2 divided by 100 plus of your 2. That is 200 divided by 102. Okay.
so that will be in series with your 102 को मैं 100 ले लो, 100 बन जाए 102 जाओ, तो ये बन जाएगा 2 और उसके साथ सीरीज में हो जाएगा 0.5. ओके, तो दिस विल बिकम फॉर मी 2 प्लस ऑफ योर 0.5, यानी दिस विल बिकम फॉर मी 2.5 divided by 2.5, यानी ये हो जाएगा 1 एम्पियर. Total current is 1 ampere. So there is no division of the current in this one. So charge will be equal to C into V. So C कितना दे रखा है 4 into potential will be given how much for me बेटा? Potential कितना दे रखा है? Whatever is the potential across कितना आ रहा है? Charge. इसके पास जितना potential होगा कितना हो जाएगा बेटा वो? तू खा रही है खाना खाना खा ले अड़ी मापदारी चावल तो मैं सबूत देने खाते अनम्यूट हो जाओ बेटा. तो शामी लांदे बाका पकड़ू लांदे पाशो Sir, your voice. Sorry. 34 देखो बेटा. Capacitance of a capacitor has an inner surface of radius 12 centimeter and outer sphere of radius 13 centimeter. The outer surface is earth and inner surface is given a charge of 2.5 microcoulomb. The space between the concentric sphere is been filled with a liquid of dielectric constant 132. Determine the capacitance for the given condition. आया किसी को ये? With the two radii, what is the formula beta? 4 pi epsilon naught into your R1 into R2 divided by your R1 minus of your R2. Clear है? डायलेक्ट्रिक भी है ना into K. Okay, इसको सिंप्लीफाई कर लो आंसर आ जाएगा. 33. A 12 picofarad capacitor is connected to 50 volt battery. How much electrostatic energy has been stored in the capacitor? So direct formula U is equals to half into C into V square. Everything is given for me beta. Capacitor is given as of a 12 picofarad. 12 picofarad मतलब कितना बेटा? 1 picofarad is 10 to the power of minus कितना? Pico मतलब कितना? अरे बाप 12. So it is your 12 into 10 to the power of minus 12. Potential कितना दे रखा है 50 volts. So it is 50 into 50. जो भी आएगा उसको कैलकुलेट कर लो आंसर आ जाएगा. 32. 3 capacitors of capacitance 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad are connected in parallel. Okay. So when they are connected in your parallel part of relation, तो effective कितना बनेगा बेटा? Connected in parallel. The charge on 2 picofarad when connected, when they are connected to the 100 volt will be equal to how much? So charge on your 2 यानी charge is equals to C into V. C कितना दे रखा है 2 picofarad यानी 2 into potential. Potential कितना आ जाएगा बेटा? Potential बताओ कितना आएगा? पहले effective बताओ. 3 capacitors का connected in parallel. So that will be equal to your 9 यानी C is equals to your Q by V यानी V will be equal to your Q by C. Charge कितना दे रखा है बेटा? बताइए ना.
Three capacitors of capacitance 2, 3 and 4 are connected in parallel. And a C effective will become for me how much for me? 9. Connected parallel or connected parallel or connected in parallel. The charge on 2 picofarad when they are connected to your 100 forward will be equal to how much? Okay. ये एक 1 है, ये 1 है और this one is 1. ठीक है. और सभी के ऊपर चार्जेस विल बी डिफरेंट. एक के ऊपर चार्ज कितना है बेटा? 2 picofarad इसका कैपेसिटेंस है. ये 3 picofarad है और यहाँ पर हो गया 4 picofarad. तो जितना पोटेंशियल यहाँ पर होगा सो पोटेंशियल वहां पर भी सेम होगा. तो पोटेंशियल कैसे निकालोगे आप? पोटेंशियल कैसे निकालोगे बेटा? C effective will be equal to 9 picofarad. So Q is equals to C into V. So V is equals to Q by C. टोटल चार्ज तो नहीं दिया ना आपने. Q by 9 लिख लेता हूँ. तो यहाँ पर हो गया चार्ज. पोटेंशियल विल बी इक्वल टू हम. तो एक ऊपर चार्ज निकालना पड़ेगा मुझे इंडिविजुअली. तो यहाँ पर पोटेंशियल अगर Q by 9 है, Q by 9 नहीं आता क्योंकि एक एक पे ऊपर पोटेंशियल चेंज हो जाएगा ना बेटा. यहाँ पर चार्ज Q1 आएगा, यहाँ पर चार्ज Q2 आएगा, यहाँ पर चार्ज Q3 आएगा. C effective will be equal to your Q1 plus Q2 plus Q3. Q effective must be equal to your Q1 plus Q2 plus Q3. Q is equals to C1 into V. ये कितना आ रहा है बेटा? Q1 is equals to C1 is equals to 2 into your potential. Potential everywhere will be your same 2V plus this will be equal to 3V plus this will be equal to your 4V. In terms of potential V में आएगा. Answer is third option. हाँ बेटा. Third option है answer. कितना आ रहा? Just Q is equal to CV. 2 into 10 to the power of minus 10 दिया आंसर. C दिया हुआ है, सब B दिया रखा है आंसर. कैपेसिटी तो C है. C की तो कैपेसिटी दे रखा है 2. पोटेंशियल कितना आ रहा है हम लोग को? पोटेंशियल निकालना है ना. They are connected to 100 sir, 100. Sorry, यहाँ पर 100 वोल्ट दिया ना डायरेक्टली. So I can directly थोड़ा झंझट ही करने की जरूरत नहीं है. So Q is equals to C into V. That means 2 into your 100. That will be equal to your 200 picofarad. Isn't it? That means 200 into 10 to the power of minus 12. यानी 10 to the power of 10. यानी 2 into 10 to the power of minus 10. ये पूरा करने की जरूरत नहीं है. You can write it out here. बहुत जानती है बेटा ऐसा पेपर. शायद मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंटली ले लिया. ठीक है चलो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कल की क्लास में विल बी स्टार्टिंग विद योर सेमीकंडक्टर्स बेटा. उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे. ठीक है. कैपेसिटर्स पे मैं और एक पेपर बनाता हूँ जो बेसिक लेवल पे हो, इतना लेवल पे ना हो, सो दैट वी कैन गेट सम कॉन्फिडेंस गेनिंग इन दैट वन. तो कैपेसिटर्स पे एक छोटा सा मैं अलग पेपर बना लेता हूँ. तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे 50 मार्क्स का पेपर बना लेता हूँ. उसके बाद कभी हम लोग एक दिन पेपर डिस्कशन कर लेंगे. ठीक है. कल की क्लास में स्टार्टिंग विद योर सेमीकंडक्टर्स, लॉजिक गेट्स वगैरह सब है ना, पूरा खत्म कर लेंगे हम. ठीक है. एंड पेपर में आज ही भेज दूंगा आप लोग को पूरा कैपेसिटर सेमीकंडक्टर्स. ठीक है. कल भेजूंगा आज भी. ठीक है. टेक केयर बेटा. बाय.